what you should remember, section 2A is proposal. Section 2A is proposal. Okay. Above section 2A is proposal. Now what is proposal? When you talk the section 2A is proposal. So what is mean by proposal? Okay, we are not going by the general definition. We are going by the legal definition itself. आपको एग्जाम में, जुडिशरी के एग्जाम में लीगल डेफिनेशन ही आते, ठीक है। अब देखिए, when one person signifies to another, जो एक आदमी दूसरे आदमी को his willingness to do or to abstain from anything doing, abstain from doing anything with a view to obtaining the assent, माने permission of that other to such act or abstinence is said to be a proposal. So proposal में keywords क्या है? Definition में one person signifies to another, एक पार्टी दूसरे पार्टी को सिग्निफाई कर रही है, मतलब एक साइन करके दे रही हूं, his willingness, willingness माने इच्छा, इरादा, to do कुछ काम करना, और to abstain मतलब काम से रुक जाना, from doing anything, कुछ भी काम, doing anything आया उधर, with a view to obtaining the assent of that other, दूसरे आदमी का उसका willingness लेने के लिए, to such act or abstinence, कुछ काम करना या काम कुछ करने से रुक जाने के वास्ते अगर उन्हें लिख के दिया, so someone says and writes, gives in writing, signifies, then it is said to be what? Proposal. So what is proposal? Please, you have to be very clear in the direct language. तो क्या बता रहा? When one person, please read this slowly and steadily, भागना नहीं अपने को, क्या है बोलिए? When one person signified to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, कुछ काम करने से रुक जाना, abstinence, he is said to make a proposal. समझ में आ रहा? तो 2A क्या है? What is 2A? Proposal. कोई एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी इरादा बता रहा, कोई काम करना या नहीं करने के लिए, कि कुछ उसको फायदा हो रहा, कि परमिशन लेने के वास्ते, to other such that act or abstinence said to be a proposal. So what is proposal? What is proposal? One person signified to another person. अब देखिए, वही same thing is being repeated here. When one person signifies to another his willingness or to do or abstain, to do, एक word है ये, to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent माने permission of that other, मान दूसरे आदमी का, to such act or abstinence is said to make a proposal. Clear है point? समझ में आया? Yes. Yes. तो doubt है? Will you go on to the next subsection? Hello. Yes, sir. Next. 2A is proposal. Next, when you go to the next section, 2B. What is 2B? 2B. Promise. Vada. Promise माने वादा. What is the vada? When the one person to whom the proposal is made
जो एक आदमी है, टू whom द प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल किसको दे रहे, सिग्निफाइज हिज एसेंट टू देयर टू, प्रपोजल दिए बाद में उधर से भी यस बोल के आ गया, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, उधर से यस बोले तो इसका मतलब क्या है, प्रपोजल एक्सेप्ट, प्रपोजल एक्सेप्टेड। जैसा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ वो क्या बन जाता, प्रॉमिस, प्रॉमिस। समझ में आ रहा? सो व्हाट इज प्रॉमिस, सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो व्हाट इज प्रॉमिस इन सिंपल वर्ड्स, समझाने के लिए अगर बताए तो, एक्सेप्टेड प्रॉमिस इज नथिंग बट, जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेड प्रपोजल इज नोन एज प्रॉमिस। ठीक है, जो कोई एक प्रपोजल दिया, पार्टी भी उसको एक्सेप्ट कर ली, वो एक्सेप्ट करते कि वो प्रपोजल क्या बन जाता, प्रॉमिस बन जाता। प्रॉमिस दैट इज गिवन इन विच सेक्शन, टू बी, टू बी, इट इज गिवन इन टू बी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, यस, यस और नो? यस, Okay, so coming to the third point, 2C. What is 2C? Promisee. C क्या है, promisee, ऐसा याद रखो, C is promisee. promisee, The person making the proposal is called promiser. Who is a promiser? promiser, A the person person who making the making the proposal. proposal, जो proposal दे रहा, that person becomes a promiser, and the person accepting the proposal promiser, is called promisee. Clear a promisee, point? So what is yes, proposal? Proposal क्या है? What is a proposal? yes sir, Proposal किसको बोलते हैं? sir, when one person gives advice to another No, through not willingness. advice. When one person signifies to signifies, another, माने Okay. signifies अपने, yes ठीक है मैं कर रहा हूँ। When one person signifies to another, sir, signify, signify का signify exact माने, meaning क्या है सर? signify का मतलब यह है कि अपना डिसीजन बताना, करना है नहीं करना है बोले, डिसीजन मेकर, signifies. One person signifies to another his willingness to do so. करना है नहीं करना है पूछते काम, तो करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है बोलो बोलते। तो अगर आप करना है बोले तो सिग्निफाइज करे जैसा। ठीक है, when one person signifies yes to sir, another his willingness to do माने काम करना, to abstain वो काम करने से रुक जाना, from doing anything कुछ भी, बहुत broad definition आता है, anything with a view to obtaining the assent permission of that other to such act or abstinence। समझ आ रहा, जाना है नहीं जाना है, उसका परमिशन लेने के लिए जो आप बता रहे चीज को, तो वो क्या हो जाता है, वो एब्सटिनेंस माने रुक yes जाना, sir, काम नहीं करने। ही इज सेट टू मेक ए प्रपोजल, 2A इज प्रपोजल, व्हाट इज 2B, प्रॉमिस। promise, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता तो क्या बन जाता वो, प्रॉमिस। नाउ 2C, Accepted. promise, accepted proposal is a promisee, promise, promise। 2B, accepted proposal is promise। समझ आ रहा? और promise, a person making the proposal yes, is called promiser, Promiser. and the person accepting the proposal is called promisee। Promisee. ठीक है, नेक्स्ट 2D, what is 2D, consideration। 2D is called yeah, consideration। D याद रखो, Consider. D consider, टू, सब टू क्लॉज D में कंसिडरेशन D आता, D में मुआवजा, उर्दू में बोले तो मुआवजा। अगर आप इफ यू टेक अप मुआवजा, अगर आप शादी का देखे
तो मेहर जो देते वो क्या है, एक माने में कंसिडरेशन कैसा होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, when at the desire of the promiser, desire माने ख्वाहिश, of the promiser, who is the promiser? The तो person जो who signifies his willingness to another. Who is the promiser? भाई उर्दू में आप जनरल promiser किसको बोलते हैं? Who makes सर a जो promise. वो प्रपोजल Who का, make a promise. प्रपोजल दे रहा, वो Making प्रपोजल बोल रहे हैं proposal. आप। अब प्रॉमिसर कौन है? जो वादा कर रहा, जो वादा कर रहा वो क्या हो गया, प्रॉमिसर हो गया। डिजायर माने ख्वाहिश, प्रॉमिसर जो वादा कर रहा। with when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstain from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called the consideration for the promise। माने कोई काम करने के लिए मेहनताना जब लेते तो उसको क्या बोलते, कंसिडरेशन। समझ में आ रहा? अब मैं सर आपको बोल रहा हूँ, सर कंसिडरेशन एंड कमीशन सेम है। नहीं, कमीशन इज समथिंग विच इज नॉट करेक्ट वर्ड फॉर लीगल। एक कमीशन क्या है, कंसिडरेशन ही बोल सकते हैं आप। माने आप कुछ काम करने के लिए मुआवजा ले रहे हैं ना, मैं काम करके दे रहा हूँ तो मैं को इतना पैसा होना बोलते हैं आप, दैट इज नथिंग बट कंसिडरेशन। सिमिलर बोल सकते हैं, नॉट सेम, सिमिलर। आपको कमीशन बोल के कोई लॉ में नहीं रहता। ये कमीशन क्या अपना वर्ड है, जनरल वर्ड है, इतना कमीशन होना बोलते हैं। असल वर्ड क्या है, कंसिडरेशन, ठीक है। तो कंसिडरेशन किसके डिजायर पे होता? कंसिडरेशन इज Promiser. डन ऑन द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। ये क्वेश्चन आता आपको ऑब्जेक्टिव में, कंसिडरेशन किसके डिजायर पे होता? व्हाट इज द आंसर? promiser. प्रॉमिसर के डिजायर पे होता। तो प्रॉमिसर क्या बोलता, ये काम करो या ये काम मत करो तो मैं आपको कुछ दे दूं। समझ आ रहा? तो वो जो प्रॉमिसी जो ले रहा प्रॉमिसर से, उसको बोल रहे कंसिडरेशन। समझ आ गया? यस और नो? Yes. तो कौन से क्लॉज में है कंसिडरेशन? टू क्लॉज डी। B. नेक्स्ट Sir, टू ये पे कौन करता है कंसिडरेशन? कंसिडरेशन प्रॉमिसर प्रॉमिसर पे करता। अब किसको देखो, देना सर वो कंसिडरेशन? प्रॉमिसी को देना। अब आप मेहर दे रहे, मेहर किसको दे रहे? when you are giving the meher, you are giving, you are marrying the, when a bride when a groom marries the bride, who is giving the meher? ग्रूम। groom। तो groom क्या हो गया उधर? आपके फाई से दे रहे ना, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। प्रॉमिसर। तो groom क्या हो गया, प्रॉमिसर हो गया। ओके ओके ओके। एंड द ब्राइड इज टेकिंग द हाँ सर। द डूअर, महर। meher। तो हु इज द प्रॉमिसी प्रॉमिसी। हियर? Do. डूअर। समझ आ रहा? ये Yes, सुनो। sir. Yes. ओके चलो एवरीवन। sir, हाँ sir, बोलिए। clause A and clause D is similar, right? क्लॉज ए क्या है? A Clause and A D. is talking about the proposal. This is talking about the proposal. To clause A is proposal. माने अपना इरादा बता रहे आप, इरादा। जब इरादा पूरा हो But जाता, यहाँ पे भी किसी के बोलने पे अब तो इसमें देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं, करना या नहीं करना देख रहे। कर रहे और okay.
अब प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता, ये प्रपोजल दिखा रहे बस अपने क्या इरादा है ये। जब इरादा पक्का होते कि इरादा पक्का करने का तरीका क्या है, कंसिडरेशन। समझ में आ रहा? Okay. अब इरादा पक्का कैसा Okay. करते? So, अब दुकान में जा रहे हैं आप, वो जो ड्रेस दिखाओ बोल रहे, तो आप ड्रेस दिखाओ बोले तो क्या कर रहे हैं आप? प्रपोजल हो रहा उधर, उन्हें ड्रेस दिखाता। जब आपको मालूम है कि भाई ये ड्रेस लेना है, इरादा बन जाता आपका, तो आप क्या करते? यू आर गिविंग द मनी, खरीदना है बोल के। जैसा आप वो yes. उसका पैसा देते, वो पैसा क्या बन गया? कंसिडरेशन। माने Consideration. डील डील फाइनल Consider. हो गई, डील Yes. फाइनल हो गई। एक क्वेश्चन आता आपको, एक स्टेटमेंट आता, विदाउट कंसिडरेशन any agreement without consideration is void। मतलब कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा? Okay. Yes. क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आता है। Yes, sir. सो 2E समझ में आ गया। 2A क्या है? प्रपोजल है, इरादा। 2D Proposal. क्या है? इरादा पक्का होना। कंसिडरेशन दिए तो पक्का हो जाता, फिक्स। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, Yes. Yes, sir. how many of you are married here? Sir, One. Sir. लास्ट हुस्ना, लास्ट में Yes, हाजी साहब आके sir. बैठते, जब भी पूछते महर कितना लिखना बोल के, जैसा महर फाइनल करते, जब भी सिग्नेचर मारते उसके बाद ही महर से पहले मारते सिग्नेचर। नहीं, महर का पूछते, No. हाजी साहब पूछते इतना पैसा, इतना महर, राजुल वक्त कितना करना। नगद। तो जैसा महर पक्का होता है जब सिग्नेचर मारो बोलते हैं, जब तक पेपर में नहीं दिखाते सिग्नेचर मारने का। समझ आ रहा? Sir. Yes. कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है, और इन मुस्लिम लॉ और मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट 2E। व्हाट इज 2E? एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। so agreement क्या है? what do you mean? उर्दू में क्या बोलते हैं agreement? Every. what do you call in Urdu? every Agreement. promise and every set of promise forming the consideration for each other। एक दिमाग में बात आई, प्रपोजल आया, लेके गए, प्रॉमिस करे, एक्सेप्ट हुआ, तो वो क्या बन जाता? प्रॉमिस बन जाता। उससे प्रॉमिसर और प्रॉमिसी आ जाते। Yes. उसके इवज में जो Yes. कंसिडरेशन दे रहे, जैसा कंसिडरेशन आप दे देते, वो क्या शक्ल ले लेता? एग्रीमेंट की शक्ल ले लेता, प्रपोजल। Agreement. ठीक है, अगर दोनों प्रपोजल के बीच एक्सेप्ट हुआ agreement. तो प्रॉमिस बन जाता। प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन भी आ गया तो वो क्या बन जाता? एग्रीमेंट। समझना? क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. यस और नो? Yes. नेक्स्ट Yes, sir. 2F। व्हाट इज 2F? promises which forms the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promises। are called reciprocal promises। निकाह बुक है, ग्रीन बुक, रेड बुक, उसने लिखा हुआ रहता Yes. फराइज बोल के, हुकूक। सो कंसिडरेशन दिए बाद में promises from which form the consideration or part of consideration for each other, party A और party B are called क्या है? reciprocal promises। क्लियर है पॉइंट? ये समझो।
नेक्स्ट, रेसिप्रोकल का मीनिंग है सर? Sir, can you explain one more time? प्रोमिसेस, हेलो। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल माने एक हाथ देना एक हाथ लेना। अच्छा, एक्सचेंज भी बोल सकते सर उसको? x इज इक्वल टू 1/y। हाँ सर, उसको एक्सचेंज, एक्सचेंज भी बोल एक्सचेंज, सकते हैं, एक्सचेंज। एक्सचेंज, ये हाथ लियो एक हाथ दियो, ठीक है। सो जो भी व्हाट इज प्रॉमिस, ठीक। प्रॉमिस क्या है बोलो? एक्सेप्टेड प्रपोजल इज ए प्रॉमिस। promises which forms Yes. the consideration। अब ये प्रॉमिस कर रहे कि इतना देते आपको कंसिडरेशन, और इसके साथ ये भी देते वो भी देते, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। समझ आ रहा? आप ये अमाउंट दिए तो आपको ये सर्विस दे रहे। अब दोनों भी जब एक्सेप्ट कर लेते, Okay. आई एम टीचिंग यू, मैंने क्या करा आपको पहले क्या एडवर्टाइजमेंट भेजा है कि भाई जुडिशरी पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट बोल के, वो क्या है प्रपोजल हो गया। आप लोग उसको एक्सेप्ट करे तो क्या हो गया, वो प्रॉमिस हो यस, गया ना। प्रॉमिस हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो गया, Consideration. कंसिडरेशन आ गया उसमें। सो कंसिडरेशन, promises which forms the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises। समझ आ गया? Promise. जी। माने दोनों सर का ये रेसिप्रोकल रिलेशन। लीगल वर्ड है एक्सचेंज का? यस, रेसिप्रोकल लीगल वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, 2G, an agreement not enforceable by law is called, is said to be void, Void. is वॉइड। said to be void, वॉइड। ठीक है। an agreement is a void agreement। जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, void agreement। क्लियर है पॉइंट? व्हाट इज a void agreement? जो कानूनी तौर पे, Not enforceable by. जो कानूनी तौर पे उसको एनफोर्स नहीं करा सकते, तो क्या हो जाता हो, दैट इज ए void agreement। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. सर ये कानूनी तौर पर नहीं करा सकते या फिर नहीं कराए? नहीं करा सकते, नॉट एनफोर्सेबल। अब किसी को मारने, अब देखो नॉट इम्पॉसिबल। किसी को मारने का आप एग्रीमेंट कर लिए, ठीक है। अब किसी को बोले कि भाई जी। उसको मार के आओ बोल के, लिखा लिए सब। अब उसमें क्या हो गया, अब उन्हें मार दिया लेकिन पकड़े गया पुलिस, क्या जो पकड़े गया ना उन्हें बोल सकता कि हम लोग का एग्रीमेंट हुआ था, इन्हें मारे तुमको बोलता बोल के, क्या उन्हें एनफोर्स करा सकता क्या? इलीगल हो गया ना वो, इट इज नॉट नहीं। लीगल, अच्छा, अच्छा, ठीक है। जो कानूनी तौर पे उसको लागू नहीं करा ठीक। सकते तो वो क्या हो गया, कौन सा एग्रीमेंट हो गया, वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। ये सर नो? ठीक है। यस Yes, सर। sir. एक चीज बोलो, कंसिडरेशन किसको मिलता, प्रॉमिसर को मिलता, प्रॉमिसी को मिलता? प्रॉमिसर को मिलता था, वो प्रॉमिसी को मिलता। प्रॉमिसी, प्रॉमिसी क्या है, यस, जो एक्सेप्ट कर रहा, जो जो एक्सेप्ट कर प्रपोजल रहा एक्सेप्ट कर प्रपोजल, रहा उसको प्रॉमिसी। ठीक है। यस सर। प्रॉमिसर कौन है, जो प्रपोजल दे रहा। मेकिंग द प्रपोजल, ठीक है। यस। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, यस व्हाट सर। इज अ वॉइड एग्रीमेंट? Which is not enforceable. एन एग्रीमेंट नॉट Enforceable by law. इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। इज नोन एज वॉइड एग्रीमेंट। समझ में आ गया? डाउट है अभी इसमें? यस। Sir, नो। बोले। ये जो void है ना सर, हेलो। बोलिए बोलिए, पूछिए। हाँ, ये जो void वाला है ना, तो वो अब क्राइम्स एक्शंस को अब लॉ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं void agreement। इलीगल है ना। वॉइड मतलब क्या, हाँ वॉइड माने जीरो, जी। वॉइड मतलब
0। जी क्या किसी को क्राइम का एक एग्रीमेंट करे, क्या वो लीगली वैलिड है? क्या लीगली वैलिड है? क्राइम क्राइम लीगली इलीगल हो गया। वैलिड नहीं होता। क्या हाँ आप किसी को बोले इसको मारना है बोल के, उन्हें पैसे ले लेके भाग गया, जी क्या आप पुलिस में जा सकते? मैं उसको उसको पकड़ मारने भी का नहीं तो सकते। पैसे दिया था बट उन्होंने काम नहीं करा बोल के। आपने कुछ मारता सर, पकड़ के पुलिस वाले बोले। जी और पहले तो बोलते हुए तो एग्रीमेंट ही कैसा करा, वॉइड एग्रीमेंट हो गया ना, समझा? जी यस जी पहले तो क्या है, गलत काम करना नहीं। इलीगल एग्रीमेंट्स को वॉइड एग्रीमेंट्स बोलते हैं। यस, इलीगल एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। ओके, क्लियर है पॉइंट? जी नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इलीगल। यस देखो, वो हो कभी कभी लॉ भी पहले हो सकता फिर नहीं हो सकता। नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ याद रखो। ओके, यस और नो? नेक्स्ट, यस सर। 2H। व्हाट इज 2H? नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट an agreement enforceable by law is contract. So an agreement not enforceable by law is void agreement. जी का अपोजिट An agreement void enforceable by law is a contract. अगर कोई भी एक पेपर contract. पे लिख लिए, जी का उस पूरा पे अपोजिट होना सर। उस पे कानूनी तौर पे ठप्पा पड़ गया तो क्या बन जाता? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। अब आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट क्या है आपका? वो कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट का ठप्पा पड़ गया उस पे, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ना। समझ आ रहा? An agreement enforceable by यस law सर। is a contract. An agreement not enforceable by law is said to be void. void. Clear a point? Yes or no? Yes. Okay. Yes चलो sir. next। Clear. सर जी, पूछिए। हेलो, कुछ पूछ रहे? Yes sir बोल। ये सर नहीं सर हमने बोल। फरीद जी, पूछना, कुछ पूछ रहे आप लोग? पूछे तो पूरा पूछिए, नहीं नहीं बोल। हम नहीं पूछे। नेक्स्ट, 2I। What is 2I? What is 2I? An agreement, voidable an agreement which is which is enforceable by enforceable by law enforceable by law at the at the option of option। one or more of पढ़िए, पूरा पढ़िए। an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of other or others is a voidable contract। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? एक पार्टी ए पार्टी बी कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, लेकिन बाद में किसी वजह की वजह से कोई एक पार्टी उसको निभाना नहीं चाह रही, विड्रॉ विड्रॉ कर लेना चाह रही, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज वॉइडेबल एग्रीमेंट। जो कोई एक पार्टी सर दूसरे थोड़ा पार्टी के बगैर ही, स्क्रॉल करना सर इसको। क्या बोले? थोड़ा स्क्रॉल करिए। दिख रहा है एन ना? scroll। एग्रीमेंट which is enforceable by law, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of other or others। माने जो पार्टी को, जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है उन लोग नहीं कर सकते, जो कॉन्ट्रैक्ट में है उन लोग नहीं कर सकते। समझ आ रहा? क्या? Yes. एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर। अब देखो, मैं आपका एग्रीमेंट करा आपसे, व्हाट डिड आई डू? आई सेड, एक प्रपोजल दिया, वो प्रॉमिस बना, प्रॉमिसर हो गए, प्रॉमिस ही हो गए। अब आप लोगों का कंसिडरेशन भी दे दिए, अब उसके बाद में क्लासेस नहीं ले लो तो क्या होता? व्हाट हैपेंस? voidable contract। अब आप लोग क्या करते? कोर्ट में चले जाते हैं ना, माय लॉर्ड, पैसे लिए, फीस भी ले लिए, कंसिडरेशन भी ले लिए, बट लेकिन क्लासेस नहीं ले रहे।
तो जरा जरा उनको बोलो क्लासेस लियो बोल के। समझ में आ रहा? जी आप सर। अकेले चले आ रहे ना? समझ में आया? यानी कि 2 पार्टीज में से कोई एक विड्रॉ करना। जो कोई एक पार्टी, 2 पार्टीज में से कोई एक पार्टी मुखर जा रही है अपने अल्फाज से, लेकिन बोल रही नहीं, लेकिन आप क्या है जबरदस्ती उसको कराने लगा रहे हो चीज को, तो क्या हो जाती हो? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? एट द ऑप्शन माने चॉइस बता रहा है मैं। एट द ऑप्शन मीन्स हियर, एट द ऑप्शन मीन्स क्या? चॉइस। इट इज कॉल्ड एज चॉइस। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties, but not at the option of other, माने जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, is a voidable contract। समझ में आ रहा? ये तो डेफिनेशन है, ये तो क्या है? डेफिनेशन हो गया। अब देखिए, कभी कभार क्या होता है, चाइल्ड मैरिज हो जाती, कभी कभार क्या हो जाता, चाइल्ड मैरिज हो जाती। लीगल एज फॉर मैरिज क्या है? व्हाट इज द लीगल एज फॉर मैरिज? 21 अगर आप 21 नाउ 21 फॉर बॉयज एंड 18 फॉर गर्ल्स। लेकिन मुस्लिम लॉ में कब मैरिज कर सकते हैं? when he or she attains the puberty, right? अब 15 years Yes. is called as marriageable age in Muslim law। अब 15 years में मैरिज हो गई, 15 years में क्या है? मैरिज हो गई। 3 साल के बाद यू बिकम 18 years। नाउ यू आर ए मेजर इन द आइज ऑफ लॉ, यू आर ए मेजर इन द आइज ऑफ लॉ नाउ। अगर अब आपके पास हक मिल जाता कि यू कैन गेट आउट ऑफ द मैरिज एट 15 years ऑफ एज, एट द इंस्टेंस ऑफ योर गार्डियन, मैरिज हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन दैट इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दैट वाज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप 3 साल के बाद, 18 हो गए के बाद आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये तो अब जिंदगी नहीं गुजर सकती बोल, तो आप क्या कर सकते हैं? मैरिज से बाहर आ सकते हैं। क्यों? अपने जो मैरिज है इज ए नेचर इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? वॉइडेबल है। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? वॉइडेबल है। मुस्लिम मैरिज इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मेजर हो गए बाद में सॉरी क्या बोलते, शादी से बाहर आ जा सकते हो, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझना? अगर खुला हो रहा, व्हाट इज खुला? खुला क्या है? जब आप खुला को अप्लाई कर देते, हाउ आर यू एबल टू अप्लाई फॉर खुला? The bride has the right. हस्बैंड तो देना नहीं चाहते, लेकिन अगर बच्ची चाह रही कि भाई हम नहीं रह सकते अब साथ में बोल के, तो क्या हो गया? ये खुला। उसको खत्म कर दे सकते हैं एग्रीमेंट को। देयर इज एन एग्जांपल ऑफ वॉइडेबल मैरिज। समझ आ रहा? वॉइडेबल एग्रीमेंट। क्लियर है पॉइंट? यस। Yes, sir. जी Yes, sir. okay. So we have 1 more minute left in this session। एक लास्ट है, प्लीज रीड 2J। व्हाट इज 2J? एक A contract. पढ़िए, करिए, आप कंटिन्यू करिए। 1 मिनट है मेरे पास, जल्दी बोलो। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. When it ceases to be enforceable, a contract which ceases माने खत्म हो जाना, cease माने खत्म हो जाना, हाँ, end stop. to be enforceable by End. law। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आज enforceable था, कल नहीं है, तो क्या बन जाता? वो void बन जाता। when it ceases to be enforceable। समझ आ रहा? जो आज है कल नहीं है, तो वो void हो गया। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it is ceases to be enforceable। समझ आ रहा? जो enforceable माने